Hello students, a very good morning to all of you, my dear students. Today I am here to revise chapter 12 and the name of the chapter is Animal Wealth of India. ठीक है. Now I have already explained this chapter, but again you will just see, I will just revise this chapter because so that you will you just remember all the topics of this chapter. And now let's start. Animals are also a form of natural resources for us, because animals are also a resource for us. We get milk and other dairy products from animals. Similarly, from many other reasons we tame some animals. हम लोग बहुत सारे रीज़न से एनिमल्स को पालते हैं. मेंस टेम डॉग, बहुत सारे लोग डॉग्स को पालते हैं. लेटर वी टेम्ड कैटल्स, शिप, गोट, पिग एक्सेट्रा. ठीक है, ये सब को भी हम लोग पालते हैं ताकि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे मिल्क है, मीट है, ऊल है, ये सब चीज़ें हमें उनसे प्राप्त हो सके. सम एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. दीज आर द डोमेस्टिक हर्ड्स ऑफ कैटल. झुंड है कैटल्स का. सम एनिमल्स वेर रियर्ड फॉर कैरिंग लोड्स. कुछ एनिमल्स को पाला जाता है ताकि वो लोड्स कैरी कर सके, जैसे बुल्स, बफेलोज, कैमल, हॉर्स, डंकी, म्यूल एंड याक आर यूज्ड फॉर कैरिंग लोड्स. These are called beast of burdens. उनको क्या कहते हैं? beast of burdens और draught cattles. Camel is called the ship of desert. Camel जो है उसको ship of desert भी कहते हैं, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि कैमल एक ऐसा एनिमल है जो रेगिस्तान में 30 से 40 दिन तक बिना पानी के वो चलता है. ठीक है, वो अपने हम्प में वाटर स्टोर करे रहता है और उसी से उसकी बॉडी में वो पानी का मात्रा पूरा होता रहता है. सो दिस इज कैमल. एंड काउस एंड बेफेलोस आर कॉल्ड मिल्च कैटल. दूधारू एनिमल्स हैं जो दूध देते हैं हमें. शिप्स एंड गोट्स आर रियर्ड फॉर देयर मीट एज वेल एज ऊल. वी हैव अ शिप ब्रीडिंग कॉल्ड एट हिस्सर, बुलॉक्स एंड buffaloes for use for farming. Dungs of the animals are used as manure. और उनके जो गोबर हैं, डंग्स हैं, वो मैन्योर के रूप में काम करते हैं. We find many animals in the forest such as lion, tiger, bear, elephant, deer, fox and monkeys. They are called wild animals. जो animals जंगल में पाले जाते हैं, they are wild animals. This is the picture of donkey, camel, herds of cattle. Okay, now we find many animals in the forest. There are lions in the Gir forest in Gujarat, tigers, leopard, fox, wolf, bear and wild boar etc. are found in the forest. These are the wild animals which is found in the forest. Elephants are found in the south and northeast India. Rhinoceros are also found in Assam and West Bengal. Musk deer is also found in Himalayas. These are the animals where they are found. Okay, there are many types of deers in our country. Tiger is a national animal of India and tiger is also a national animal of our country. Elephants are tamed by some people. They help us in carrying loads and for riding in the jungle. एलिफेंट्स जो हैं वो भी पाले जाते हैं, कुछ लोग पालते हैं उनको लोड्स कैरी करने के लिए और जंगल में लकड़ी वकड़ी जैसे लेकर आना हो तो एनिमल्स पीपल यूज टू प्रेफर एलिफेंट्स. ओके, मैनी एनिमल्स आर डिसअपियरिंग एट द अलार्मिंग speed in the recent times, so the government has declared many forests as reserved forest. क्योंकि एनिमल्स की वहाँ पे सुरक्षा होती है एंड दे स्टार्टेड स्पेशल प्रोजेक्ट्स लाइक अ प्रोजेक्ट टाइगर टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स. और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं ताकि एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकें. दिस आर द पिक्चर्स ऑफ सम एनिमल्स, लायन, एलिफेंट एंड टाइगर. नेक्स्ट इज एनिमल वेल्थ इन इंडिया. Animals are wealth for India because
Indian top of cattle wealth is the world. 15% of the world cattle and 57 are buffaloes estimated to be Indian. Domestic animals serve various purpose of animal men. They are useful to men in the following ways. They provided milk and meat. Animal waste and other used to use as manure in the field. जो एनिमल का वेस्ट होता है उसको मैन्योर की तरह यूज़ किया जाता है नाउअडेज. काउ डंग इज़ यूज फॉर मेकिंग का बायोगैस, जो कि एक कुकिंग गैस भी है, लाइटनिंग के काम भी आता है. एंड एनिमल हेयर इज़ यूज फॉर स्पेशल टाइप ऑफ ब्रश. एनिमल्स के हेयर जो है स्पेशल टाइप ऑफ ब्रश के लिए काम के लिए आते हैं. ठीक है. फर्टिलाइजर्स आर मेड फ्रॉम बोन्स, और बोन्स जो है एनिमल्स के उससे फर्टिलाइज़र बनाया जाता है. एनिमल लाइक मेल बफेलो, हॉर्स, कैमल एक्सेट्रा आर यूज टू पुल कार्ट्स, बुलेक्स एंड यूज टू प्लग द फील्ड. एंड यूज टू मतलब फील्ड्स को फील्ड्स की खुदाई करने में हेल्पफुल हैं. नाउ सम मोर यूजेस आर देयर. स्किन ऑफ एनिमल्स आर यूज फॉर मेकिंग लेदर प्रोडक्ट्स. जो एनिमल्स के स्किन हैं उसको लेदर प्रोडक्ट्स बनाने के काम आता है, जैसे शूज़ हैं, बैग्स हैं, बेल्ट हैं, टेंट्स एक्सेट्रा. वूल्स इज ऑब्टेन फ्रॉम शिप एंड गोट विच इज़ यूज फॉर मेकिंग वुलन क्लोथ्स, कारपेट्स, शॉल्स एक्सेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट है वाइट रेवोल्यूशन. वाइट रेवोल्यूशन क्या है? इंडिया पोजेस अबाउट 1/5 ऑफ द टोटल कैटल वेल्थ इन द वर्ल्ड, बट द क्वालिटी ऑफ आवर कैटल इज़ वेरी पुअर. क्वालिटी जो है कैटल की पुअर है. दे आर वीक एंड हेल्दी. दे आर वीक एंड अनहेल्दी. तो वो बहुत वीक है, अनहेल्दी हैं. वर्टिनरी हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज आर बीइंग सेट अप इन बिग विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ to increase the yield of milk and cows and buffaloes. Better quality of fodder is being provided to farmer. तो उनकी बढ़ोतरी, उनकी सुरक्षा के लिए जो रिवोल्यूशन चलाया गया है उसको कहा गया है टू इम्प्रूव द ब्रीड ऑफ फार्म एनिमल्स. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स, उनकी ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं. ड्यू टू ऑल दिस एफर्ट मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री इन द रिसेंट एरियाज हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. तभी मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता चला गया है. टू इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन और डेयरिंग इज कॉल्ड वाइट रेवोल्यूशन. ऑपरेशन फ्लड was rural development program started by Indian National Dairy Development Board. It resulted in making India the larger producer of milk and milk products, and hence it is also called White Revolution of India. और उसको White Revolution of India कहा गया है ताकि जो कैटल्स हैं उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करें और उनके अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाए और मिल्क प्रोडक्शंस को इंक्रीज़ करने के लिए कहा गया, ताकि वाइट रेवोल्यूशन, उसी को वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं. नेक्स्ट है डेयरिंग. डेयरिंग क्या होता है? डेयरिंग आपको अच्छे से पता है कि कुछ ये मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ है, मिल्क है. डेयरी इज़ अ प्लेस वेयर मिल्क एनिमल्स आर रियर्ड. जहाँ दुधारू जो एनिमल्स होते हैं उनको पाला जाता है और उनसे जो मिल्क प्रोडक्ट्स मिलता है उससे क्रीम, बटर, चीज़ में बनाया जाता है. इन मॉडर्न टाइम्स डेयरी एनिमल्स आर रियर्ड एंड ब्रीड ऑन लार्ज फार्म्स विच आर मैकेनाइज्ड एंड हैव इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज़. ठीक है. इसके बाद है शिप रेयरिंग. शिप रेयरिंग क्या होता है? शिप एंड गोट्स प्रोवाइड मिल्क विच ऊल एंड मीट. ये तीन चीज़ देते हैं, मिल्क, ऊल एंड मीट. ऊल से ऊन बनता है जिससे हमारे ऊलन क्लोथ्स बनते हैं. एंड शिप्स एंड गोट्स आर माउंटेनियस रीजन प्रोवाइड द बेस्ट काइंड ऑफ ऊल. जो शिप माउंटेन में रहते हैं वो उनको बेस्ट काइंड ऑफ ऊल्स प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज पोल्ट्री. पोल्ट्री क्या होता है? ए फार्म वेयर चिकन, टर्की एंड अदर बर्ड्स आर रियर्ड कॉल्ड पोल्ट्री. जहाँ पे उनको पाला जाता है उसको पोल्ट्री कहते हैं. द प्लेस वेयर पोल्ट्री वेयर बर्ड्स प्रोड्यूसेस एग इन कॉल हैचरी. जहाँ पे एग प्रोड्यूस करते हैं उसको हैचरी बोलते हैं. पोल्ट्री इज़ एन फ्लोरिशिंग बिजनेस टू. और ये एक फ्लोरिशिंग बिजनेस भी है. नेक्स्ट इज फिशिंग, फिशरी. Fishes are an important source of food which is rich in protein. एक ऐसा सोर्स ऑफ फूड है जो प्रोटीन की मात्रा में रिच है. एंड दे आर कॉट फॉर द रिवर. दे आर कॉट फ्रॉम द रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सीज. फिशेस आर ऑल्सो रियर्ड इन फार्म एंड पॉन्ड्स इज कॉल्ड पीसी कल्चर. उसको पीसी कल्चर भी कहते हैं, जहाँ पे फिशेस को रियर्ड किया जाता है, पाला जाता है, उनकी देखभाल की जाती है. उसको क्या कहते हैं? पीसी कल्चर.
Next students, these are the some points we should remember that man learned to rear animal from very early times. मनुष्य जो जानवरों को पालना बहुत पुराने प्राचीन काल में ही सीख गया था. डोमेस्टिक एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स, फार्म एनिमल एंड लाइव स्टॉक एंड बीस्ट ऑफ बर्डन. ये सब डोमेस्टिक एनिमल हैं. कुछ फार्म एनिमल्स हैं, बीस्ट ऑफ बर्डन है, ड्रॉट एनिमल्स है, लाइव स्टॉक है. डेयरीज, पोल्ट्री फार्म्स एंड फिशरीज हेल्प द टू इंक्रीज द नीड्स ऑफ मिल्क, एग एंड फिशेस. इसको बढ़ाया गया है ताकि जो नीड है मिल्क का, एग का, फिश का, वो मिल सके. बोन्स ऑफ एनिमल्स आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र. जो हड्डियां हैं उससे फर्टिलाइज़र बनाया जाता है. वेटरनरी हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज हैव बीन सेट अप टू ट्रीट एनिमल. और वेटरनरी हॉस्पिटल्स बनाया गया है ताकि एनिमल्स को अच्छे से ट्रीटमेंट मिल सके. So this is all about chapter 13, and students, do one thing, you have to read this chapter because this chapter is very important and very interesting also. All the different kinds of animals are given in this chapter. Okay students.